Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start exercise 9b of book D2 8th edition, and this chapter is related with Pythagoras theorem. Question number 1. This is a word problem. So for that, first of all, we have to draw the diagram for us. First of all, let's see what they are saying in the question. Some cables are supported by a vertical post of height 47. अब वर्टिकल पोस्ट का मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, वर्टिकल लाइन है, और इसकी जो साइड है वो कितनी है 47 मीटर है. द केबल्स आर अटैच फ्रॉम टॉप ऑफ द पोस्ट टू अ पॉइंट ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड. अब केबल जो है वो यहाँ से अटैच हैं और लेवल ऑफ द ग्राउंड पे आ रही हैं. 18 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट. अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 18 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट. ठीक है, सो ये आपके पास क्या हो गया 18 मीटर है. अब जाहिर सी बात है ये स्ट्रेट लाइन है, तो दैट मीन दिस इज़ राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज़ द राइट एंगल. सो ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ दैट दिस इज़ आर एक्स, जो हमारे पास लेंथ ऑफ केबल है. हमने लेंथ ऑफ केबल बेसिकली फाइंड आउट करनी है. सो according to the Pythagoras theorem, we will apply that Pythagoras theorem over here. So from that, using Pythagoras theorem, this is hypotenuse is x square. X square is equal to 47 square plus base is 18 square. So by taking square of these, 47 square is 2209 plus 18 square is 324. Adding them, we will get an answer 2533. This is x square. Taking square root on both sides, so you will get the value of x, that is 50.3. We will ignore the negative value because obviously length of anything can't be in negative. Moving towards question number 2. Question 2, they are saying that each side of a square field is 50 meter long. That means each side हमारे पास एक square field बन रहा है. I'm trying to make it a square. किसी हद तक ये square बन गया. Accept it as a square. Okay, each side is 50 meter long. So that means this is 50, this is 50, means every side is 50. And a barricade is to be placed along the diagonal of the field. Either this diagonal on we can take this diagonal or this diagonal, both is the same. Find the length of this. So that means we have to find the length of this. We know that each angle in a square is equal to 90 degree. So that means this is equal to 90. So this will be the height, this will be the base, and this is the hypotenuse. Again, let us suppose this is x. So x square will be equal to 50 square plus 50 square. 50 square is 2500 plus 2500, and this will be equal to 50 x square. Taking square root on both sides, so we will get the answer of square root, that is square root is 70.7. So the value of x is 70.7. Moving towards the next question, and in the next question what they are saying that a rectangular swimming pool, that means you have to draw a rectangle now. A rectangular swimming pool has a length of 50 and breadth is 30. अच्छा जी, एक हम रेक्टेंगल स्विमिंग पूल बना लेते हैं जिसमें आपके पास लेंथ जो है वो आपके पास आ गई है 50 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 30 मीटर. ड्यूरिंग द स्विमिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट, Bernard हैज़ टू स्विम फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द पूल टू द ऑपोजिट कॉर्नर. दैट मीन ये डायगोनल के अलॉन्ग जो है वो मूव कर रहा है. फाइंड द डिस्टेंस, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. अगर यहाँ पे 50 है, सो दैट मीन दिस इज़ ऑल्सो 50 मीटर एंड दिस इज़ ऑल्सो 30. सो दिस एंगल इज़ 90 डिग्री. अगेन यू हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज. लेट अस सपोज दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. 50 square plus over here it is 30 square. 50 is 2500 plus this is equal to 900. Adding them, we will get an answer 3400. Now taking square root on both sides, so you will get an answer x square. Taking square root on both sides, so we will get an answer that is 58.3.
meter the distance he has to cover. Clear? Okay, moving towards question number 4. And question number 4, a ladder of length. अच्छा, ये लैडर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्टली ये हमारे पास पेपर्स में आते भी होते हैं. ओके, अब वो क्या कह रहे हैं, लैडर है. लैडर हमें पता है कि हम जब भी दीवार के साथ लगाते हैं तो हम किस तरह से लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं. ठीक है, तिरछी लगाई जाती है, लैडर कभी भी इस तरह से नहीं लगती. अच्छा, और ये हमारे पास ऑब्वियसली ज़मीन से वो लैडर तक का डिस्टेंस बनेगा. अब लैडर की लेंथ है 5 सेंटीमीटर अगेंस्ट अ वॉल, वर्टिकल वॉल विद इट्स फुट 1.5. वर्टिकल वॉल की हाइट नहीं है. अब वर्टिकल वॉल विद इट्स फुट 1.8 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल. अब ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1.8 मीटर है. हाउ फार द लैडर डज द लैडर रीच. अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो हाइट है बेसिकली हमें वो फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो अब आपके पास हो गया जनाब, हाइट फाइंड आउट करनी है. परपेंडिकुलर आपके पास है 5 स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू हाइट को हम हाइट ही ले लेते हैं प्लस 1.8 स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू 25 इज़ इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 1.8 आपके पास आ जाएगा 3.24. इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. 25 माइनस 3.24 एंड द आंसर इज़ h square is equal to 21.76. Taking square root on both sides, so you will get an answer. H is equal to 4.66 meter. Till that the ladder will reach. Question number 5. The height of 20-inch television screen is, okay, this is question number 5. The height of 20 inches television screen is, sorry, 30 inches television screen is 18 inches. Given that the television screen I measured across the, मतलब ये जो 30 इंच measure किया है वो उन्होंने diagonal के along measure किया है. हमें पता है कि वो आपके पास हमेशा क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल होता है. अब ये डायगोनल के अलॉन्ग उन्होंने मेजर किया है, तो दैट मीन दिस डायगोनल इज़ 30 इंचज़ है. सॉरी, ये मीटर नहीं है, इंच है ये हमारे पास. और जो हाइट है उसकी टेलीविज़न स्क्रीन की वो आपके पास कितनी है, 18 है. आपने बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, हाउ वाइड द स्क्रीन, आपने ये उसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है. सो बेसिकली आपने बेस ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करनी है. अगर हम ये वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, सो हाइपोटेन्यूस इज़ 30 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट इज़ गिवन दैट इज़ 18 स्क्वायर प्लस विड्थ को हम बेस को हम w कंसिडर कर लेते हैं बिकॉज दे आर आस्किंग फ्रॉम अस. ओके, फ्रॉम हियर इट इज़ 900 and this is equal to 324 plus w square. So w square will be equal to 900 minus 324 and the answer from here it is 576. This is equal to w square. Taking square root on both sides, so you will get an answer w is equal to 24. So that mean ये 24 इंच जो है वो इसकी विड्थ है हमारे पास जो टेलीविज़न स्क्रीन है. ओके जनाब, क्वेश्चन नंबर 6. 2 वर्टिकल बिल्डिंग्स ऑफ हाइट. अब हमारे पास ये देखें, 2 बिल्डिंग्स हैं, एक की हाइट 37 है और एक की हाइट 30 है. आर 16 मीटर अपार्ट, ये 16 मीटर एक दूसरे से दूर हैं. द केबल इज़ पुल्ड एंड अटैच फ्रॉम द टॉप ऑफ वन बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ अनदर. मतलब एक ये जो हमने अटैच की हुई है केबल, ये एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कनेक्ट हो रही है. फाइंड द लेंथ ऑफ द केबल. बेसिकली हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है. सो यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे 16 है, सो दैट मीन दिस इज़ ऑल्सो 16. दिस इज़ 37, दिस इज़ 30, सो दैट मीन ये जो पोर्शन आपके पास बनता है ये आपके पास कितना बनता है, 7 का बनता है. सो हमें बेसिकली हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द केबल फाइंड करनी है. सो हाइपोटेन्यूस विल बी इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बन रहा है, लेंथ जो है वो हाइपोटेन्यूस बन रहा है. ये आपके पास बेस 16 स्क्वायर प्लस आपके पास बन रहा है 7 स्क्वायर. अच्छा जी, 16 का स्क्वायर आपके पास बनता है 256 प्लस 49 एंड द आंसर इज़ 305. दिस इज़ हाइपोटेन्यूस, या आप लेंथ ऑफ द केबल भी कह सकते हैं इसको. और इन दोनों को ऐड कर किया है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो द आंसर विल बी इक्वल टू 17.5. This will be the length of that cable.
ठीक है, लेंथ ऑफ केबल आ गई हमारे पास 13.7 मीटर्स में, इसका आ जाएगा यूनिट हमारे पास। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. A folded napkin has a triangular cross section of side x, x plus 1 and x plus 2 centimeter. If one of the angle of the triangle is 90 degree, find the value of x. अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, जो लॉन्गर साइड होती है वो आपके पास हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है और बाकी दो साइड्स आपके पास बेस और क्या कह सकते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। सो हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दैट मीन हमें ये तो पता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज़ x प्लस 2, बिकॉज x में 2 ऐड हो रहा है, इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर x प्लस 1 स्क्वेयर। अप्लाइंग द फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4, ओवर हेयर इट इज़ x स्क्वेयर प्लस सॉरी यहाँ पे बनेगा 4x, यहाँ पे 2x प्लस 1। अच्छा, सारी वैल्यूज़ को अगर आप एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4, और ये आपके पास बन जाएगा माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब आपके पास यहाँ से बनेगा ये और ये आपके पास बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब क्योंकि x के साथ x स्क्वेयर के साथ माइनस है, सो मुझे ये माइनस साइन रिमूव करना है। सो आई विल टेक माइनस कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स, इट विल बिकम x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब मुझे फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स 3 के बनाने हैं, सो ऑब्वियसली ये बन जाएगा x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3, दिस इज़ इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब आपके पास फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व हो गई है, सो x माइनस 3 एंड x प्लस 1, दिस इज़ इक्वल टू 0। सो आइदर x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 और आइदर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू 3 और x इज़ इक्वल टू माइनस 1। अब किसी भी चीज़ की लेंथ नेगेटिव तो नहीं हो सकती, सो आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे, you will only consider the answer x is equal to 3. So the value of x is 3. Moving towards question number 8. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, डेविड फोल्डेड अ शीट ऑफ पेपर इनटू एन एनवेलप एज शोन इन द फिगर। अब हमारे पास ये एनवेलप में उसने फोल्ड कर दिया अपनी इस शीट ऑफ पेपर को, मतलब ये बंद कर दिया उसने यहाँ से, ठीक है। AED, ADB एंड BCD। AED ये 90 डिग्री बन रहा है, ADB ये 90 डिग्री बन रहा है, और मतलब 3 हमारे पास एंगल्स ऐसे हैं जो 90 डिग्री बन रहे हैं। फिर हमारे पास है टू सील द एनवेलप ही हैज़ टू अप्लाई द ग्लू अलॉन्ग AD, यहाँ से यहाँ तक ग्लू लगाएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक वो ग्लू लगाएगा। अब ये भी हमें पता है कि AE और ED जो है ये आपस में इक्वल है, दैट मीन ये 8 है तो ये भी 8 है। इसी तरह से यहाँ पे ये 14 है, सो दैट मीन दिस इज़ ऑल्सो 14। सो बाय यूजिंग दिस ट्राइंगल आप यहाँ से AD फाइंड आउट कर लेंगे और ये वाली ट्राइंगल यूज़ करते हुए BD फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें पता चलेगा उसको कितना ग्लू चाहिए, ठीक है। सो लेट अस सपोज दिस इज़ ट्राइंगल 1 एंड दिस इज़ ट्राइंगल 2। सो पहले हम ट्राइंगल 1 को सॉल्व करते हैं और ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ट्राइंगल 1 को सॉल्व करने के लिए आपके पास ट्राइंगल का नाम लिख देती हूँ, ट्राइंगल 1 है और ट्राइंगल कौन सी बन रही है, AED बन रही है, नाम है हमारे पास। अब बेसिकली ये इसका क्या बन रहा है, हाइपोटेन्यूस बन रहा है। सो AD हम लिख सकते हैं, AD स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 8 स्क्वेयर प्लस सेकेंड साइड इज़ ऑल्सो 8। सो फ्रॉम हियर इट इज़ 64 प्लस 64 एंड द आंसर फ्रॉम हियर इट इज़ 128। दिस इज़ AD स्क्वेयर। टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास बनेगा, अच्छा या लास्ट में हम ले लेते हैं, ओके। अब दूसरी ट्राइंगल यूज़ करते हैं, ट्राइंगल 2। ट्राइंगल 2 आपके पास क्या बन रही है, BCD। अब BCD में आपके पास अगेन हमें ये क्योंकि ऑपोजिट में है तो ये हमारे क्या है, हाइपोटेन्यूस, ये हमारे पास। सो हाइपोटेन्यूस यूज़ करना है, दैट मीन BD स्क्वेयर फाइंड आउट करना है, दिस इज़ इक्वल टू 14 स्क्वेयर प्लस 14 स्क्वेयर। सो ये आपके पास बना 14 का स्क्वायर, वी नो दैट 196 प्लस 196, दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 392। अब जो टोटल लेंथ थी हमने क्या करना था, AD प्लस BD को आपने
ऐड करना है और दोनों के यहाँ पे बेसिकली स्क्वायर है। सो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं 128 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 392 और इन दोनों के स्क्वायर रूट लेने के बाद जब हम ऐड करेंगे सो हमारे पास आंसर बनेगा 31.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस है, मतलब इस पूरे डिस्टेंस पे उसको ग्लू अप्लाई करनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9, अ टेबल कोस्टर इज़ इन द शेप ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस हमारे पास एक टिल्टेड फॉर्म होती है स्क्वायर की, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल रोम्बस है, ट्राई तो मैंने किया, रोम्बस बन गया, एक्सेप्ट इट एज अ रोम्बस। ओके, द डायगोनल्स हैज़ अ लेंथ ऑफ 10। फॉर एग्जांपल ये वाला जो डायगोनल है इसकी लेंथ आपके पास कितनी है, 10 है, और जो ये वाला डायगोनल है इसकी लेंथ आपके पास है 12। अब रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, सॉरी इसकी लेंथ है 24, राइट। अब इसकी डायगोनल्स की प्रॉपर्टी होती है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि रोम्बस एक दूसरे को हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। दैट मीन ये 5 का है, ये 5 का, अगर ये पूरा 24 है तो दैट मीन ये 12 है और ये भी 12 है। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द कोस्टर। अब आप कोई सी भी ट्राइंगल यूज़ करते हुए आप उसकी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये 90 डिग्री के एंगल पे सेंटर में कट करते हैं। सो लेट अस सपोज कि वो एक्स है, एक साइड एक्स स्क्वेयर, क्योंकि आपने ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, सो दैट मीन ये इसका हाइपोटेन्यूज है 5 स्क्वेयर प्लस 12 स्क्वेयर। 5 इज़ 25 प्लस 12 इज़ 144, सो ये आपके पास बन जाएगा 169 एक्स स्क्वेयर, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 13। सो हमारे पास हर एक साइड की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अब पहले तो आप इसको समझ लें। अ पोल पी आर इज़ लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। ये आपके पास वॉल है, ठीक है, और उस पर पोल है लीनिंग, पी आर है, ठीक है, ये पी आर कोई सा भी पोल है जिसको हमने उस वर्टिकल वॉल के साथ लगाया हुआ है। गिवन दैट पी क्यू जो है वो आपके पास पी से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 4.2, और आर क्यू मतलब जो पोल्स का और जो दरमियान में इसका डिस्टेंस है ये आपके पास कितना है, 1.1 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल, हमें लेंथ ऑफ द पोल पी आर बेसिकली फाइंड आउट करना है पार्ट 1 में, ठीक है। अच्छा, पहले पार्ट 1 कर लेते हैं, फिर हम पार्ट 2 की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, पार्ट 1 में हमें फाइंड आउट करना है पी आर। तो पी आर आप देख सकते हैं कि उसका हाइपोटेन्यूज बन रहा है, सो पी आर स्क्वेयर विल बी इक्वल टू बेस आपके पास क्या बन रहा है 1.1, और जो हाइट है वो बन रही है 4.2 स्क्वेयर। अब 1.1 का जब हम स्क्वेयर लेते हैं सो ये आपके पास बनेगा 1.21 एंड 4.2 का आपके पास बनेगा 17.64, और इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर बनता है 18.85। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो पी आर मेरे पास आंसर बचेगा 4.34। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द पोल है वो आपके पास कितना है, 4.34 मीटर्स है। अब आते हैं जनाब पार्ट 2 की तरफ। द अपर पोल स्लाइड्स डाउन। अब इसको थोड़ा सा उन्होंने नीचे कर दिया, ठीक है, स्लाइड डाउन करके यहाँ पे ले आए हैं टू अ पॉइंट। अब मतलब पहले वो 4.2 की हाइट पे था, तो अब उसकी हाइट 4.2 माइनस 0.9 हो गई है। कैलकुलेट वाई आर। अब आपने वाई आर ये वाला डिस्टेंस बेसिकली बेस फाइंड आउट करना है, तो पहले हम टोटल फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें से हम 1.1 माइनस कर देंगे। आई बात समझ में? लोअर एंड जब हमने उसको स्लाइड किया तो यहाँ पे वो रीजनल पोजीशन से अब कितने डिस्टेंस पे आ गया, ठीक है ना। सो पहले हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, अगेन आप एक्स वाई, अब ये बात माइंड में रखनी है, जो पोल है उसकी लेंथ सेम रहेगी, पोल की लेंथ हम चेंज नहीं कर रहे, वो सेम है, आप सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। मतलब पहले ऊपर लगा हुआ था उसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, तो ओब्वियसली पोल तो कम ज़्यादा नहीं हो रहा ना, पोल तो सेम ही रह रहा है। सो हम पहले फाइंड आउट करेंगे ये बड़ी वाली ये वाली ट्राइंगल यूज़ करेंगे, ट्राइंगल 2, जिसमें हम वाई क्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास गिवन है 4.2 माइनस 0.9, तो दैट इज़ 3.3। अब दूसरी ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं, कौन सी ट्राइंगल हमारे पास बन रही है, एक्स वाई क्यू, जिसमें हमें क्यू वाई बेसिकली फाइंड आउट करना है। क्यू वाई आपके पास क्या है, बेस है, और ये हाइपोटेन्यूस है। सो हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या था, 4.34 स्क्वायर माइनस, मैंने पहले स्टेप में ही कर लिया, आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा जी, 4.2 माइनस 0.9 करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 3.3 का स्क्वायर।
आई बात समझ में। अब यहाँ से आपके पास बनेगा 18.5, ठीक है, वो 18.85 माइनस 10.89, इनको जब हम माइनस करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 7.96, और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा, अच्छा स्क्वायर रूट लेने के बाद ये आपके पास आ गया क्यू वाई स्क्वायर का आंसर 7.96। अब बेसिकली आपने वाई आर फाइंड आउट करना है, तो वाई आर ये पूरा वाई क्यू है, उसमें से अगर आप 1.1 माइनस कर देते हैं, इसमें से अगर हम 1.1 माइनस कर देते हैं तो मुझे वाई आर का आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ 7.96 का स्क्वायर रूट लेके उसमें से 1.1 माइनस कर देती हूँ तो मुझे आंसर जो मिलेगा दैट इज़ 1.72, ठीक है। मतलब ये टोटल था, टोटल में से मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए, सो दैट मीन मुझे इसको रिमूव करना है। जब मैं इसको रिमूव कर दूंगी, रिमूव करने के लिए ओब्वियसली माइनस करूंगी, सो आई विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में वो क्या कह रहे हैं जी, अ कंपोजिट इन अ शेप ऑफ रेक्टेंगल हैज़ अ साइड 3x+6, एक साइड ये है, दूसरी साइड इसकी है x+1, द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज गिवन 4x+1, सर्कुलर शूट विद अ डायामीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर आर टू बी प्लेस्ड अलॉन्ग द इंटायर लेंथ ऑफ एफ जी। मतलब एक सर्कुलर हमें इसमें शेप जो भी हमने बिछाना है वो आपके पास एक सर्कल शेप का है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूल्स रिक्वायर्ड, हमें कितने चाहिए होंगे इसके लिए। सो उसके लिए हम अगेन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वहाँ से फिर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि हमें कितने चाहिए। सो बेसिकली हमें लेंथ की ज़रूरत है, उस लेंथ के लिए टू फाइंड आउट दैट लेंथ वी बेसिकली नीड एक्स। सो फॉर एक्स I use that Pythagoras theorem. This is your hypotenuse, this is your perpendicular or base, or this is your perpendicular, mean they are interchangeable. So I have put it the values. So now solve it applying the first formula. This is 16x square plus 8x plus 1. Over here it is 9x square plus 2 3 are 6 6 6 are it's 36x plus 36 plus x square plus 2x plus 1. Now I have to simplify one side, then I will shift all the terms on one single side. It will be 9 plus 1, it is 10x, 36 plus 2, it is 38x, and plus 37. So I will shift all the terms on one side. It will be 16x square minus 10x square plus 8x minus 38x plus 1 minus 37. This is equal to 0. So 16 minus 10, it's 6x square minus 30x, and from here it is 36. This is equal to 0. So can I take common 6 common? X square minus 5x minus 6, this is equal to 0. This 6 will shift on the other side and it will get 0. And from here I can get an answer minus 6x plus 1x, because when I will multiply I'll get 6, and when I will subtract I will get minus 5. From here x common, x minus 6 plus 1 common, x minus 6, this is equal to 0. So either x minus 6 is equal to 0, and in the other bracket x plus 1 is equal to 0. So x is equal to 6, and on the other side x is equal to minus 1. So this I can't take because that is a negative value. So obviously I have to take x is equal to 6. Now x is equal to 6. This is the length. I have to basically find the length of length fg. So fg, I will find length of that table, because उसी पे आपको रनर बिछाना है. So it will be 3 into 6 plus 6. 3 6 are 18 plus 6 is 24. So this is 24 meters. अब जो ये आपके पास डायामीटर था ना वो सेंटीमीटर में है. सो दैट मीन आप इस 24 को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में. सो दैट मीन आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100. सो आई विल गेट एन आंसर 2400. सो नंबर्स ऑफ सर्कुलर जो भी हमारे पास रनर है जो हमें रिक्वायर्ड है, वो आपके पास कितने नंबर्स ऑफ सर्कल हमें रिक्वायर्ड हैं. सो आप इसको एक सर्कल को डिवाइड कर देंगे.
So I'll get an answer that is 60 number of सर्कल्स जो हैं वो मुझे चाहिए यहाँ पे बिछाने के लिए। ठीक हो गया जी। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे अ गार्डन इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल हैज़ अ लेंथ साइड एक्स। अच्छा जी, अब फिर से गार्डन आ गया हमारे पास। गार्डन साइड एक्स है रेक्टेंगुलर शेप की एंड 12 एंड द डायगोनल इज़ 5 होल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सो पहले तो हम एक गार्डन बना लेते हैं अपने लिए प्यारा सा खूबसूरत सा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 12 है और इसमें हमें गार्डन बनाना है। गार्डन के लिए हम लोग एक गार्डन बना लेते हैं। ठीक है जी, डायगोनल गिवन है उन्होंने। डायगोनल की जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द डायगोनल दैट इज़ 5 होल्स के रूट ऑफ एक्स। अब एक साइड उसकी x है और एक साइड आपके पास है 12। अब हमें ये नहीं बताया था कि कौन सी x है और कौन सी 12 है, सो हम अपनी मर्ज़ी से उसको कहीं भी लिख सकते हैं। फाइंड द पॉसिबल एरिया ऑफ द गार्डन, हमें पॉसिबल एरिया गार्डन का चाहिए। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं जी लैंडस्केपर चेंज चार्जेस 110 पर मीटर स्क्वेयर फॉर द लैंडस्केपिंग सर्विस। सो x फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज़ आर पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज़ हाइपोटेन्यूज 5 square root of x square, this is equal to x square plus on the other side it is 12, so 12 square, 5 square is 25 x square और ये कैंसिल हो जाएंगे, 25 x will remain over here, x square plus 144। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है। इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। सो ये आपके पास, इसको पहले हम एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। -25x प्लस 144 इज इक्वल टू 0। अब 144 के फैक्टर्स बनाने सच दैट सब्ट्रैक्शन करके मुझे 25 मिले, तो ये मुझे मिलता है 16 और 9 से। 16x माइनस 9x प्लस 144 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मुझे कॉमन कर लेना है x। सो x माइनस 16 माइनस 9 कॉमन करेंगे, x माइनस 16 दिस इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ से अब आपके पास पॉसिबल लेंथ बनेगी x माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0 और दूसरी साइड पे हमारे पास बनेगा x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। सो आइदर x इज़ इक्वल टू 16 और x इज़ इक्वल टू 9। सो हम कौन सी लेंथ लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं 9 लेंथ लेने वाले हैं। हम 16 क्यों नहीं ले रहे, हम 16 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि एक साइड ऑलरेडी लेंथ आपके पास गिवन है 12। सो सेकंड साइड हम 16 नहीं ले रहे, हम उसको क्या ले रहे हैं, विड्थ को 9 ले रहे हैं। अब जब हम 9 लेंगे, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस ऑन द सेम पेज क्योंकि आगे नहीं जाना चाह रही मैं, डाटा एक ही पेज पे रहेगा। अच्छा जी, अब आपके पास ले रहे हैं हम 9। सो पॉसिबल एरिया आपके पास क्या बन जाएगा, एक साइड 12 है, दूसरी साइड आपके पास क्या आ गई 9। सो एरिया फार्मूला इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ इज़ 12, breadth is 9, so 12 multiplied by 9 is 108 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि लैंडस्केपर जो है वो चार्ज कर रहा है 110 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर फॉर लैंडस्केपिंग सर्विस। Using the area founded in part 1, find the cost of landscaping half of the garden। अब वो पूरा गार्डन नहीं करा रहे, हाफ गार्डन करा रहे हैं। तो हाफ गार्डन का एरिया आपके पास कितना बन जाएगा, 108 डिवाइडेड बाई 2, सो ये आ जाएगा 52 मीटर स्क्वायर। एक का चार्ज कर रहे हैं वो 110, सो 52 का कितना चार्ज करेंगे, 54 मल्टीप्लाई विद 110। फ्रॉम हियर इट इज़ स्टार्टेड पार्ट 2। ये आपके पास हैं चार्जेस, ठीक है, जो वो चार्ज कर रहा है। सो वो आपके पास कितना चार्ज करेगा, $5940 जो है वो चार्ज करेगा उस हाफ गार्डन का। आई होप सो दिस इज़ एक्सरसाइज इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।